Hi students, welcome to my YouTube channel JEE Math Guru, and in this lecture we are going to solve the problems on solution of triangle. लास्ट लेक्चर में हमने 12 MCQs सॉल्व किए थे, वो सभी MCQs इम्पॉर्टेंट है. नाउ इन दिस लेक्चर अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस 12 प्रॉब्लम्स, 12 MCQs फ्रॉम 13 to 24. So all the MCQs are very important students. इसके पहले के लेक्चर में के प्रॉब्लम्स और उसके पहले के लेक्चर में हमने सारे फॉर्मूलेज भी देखे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल. सो ऑल द फॉर्मूलेज एंड ऑल द MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MST CET. सो प्लीज़ सी वॉच ऑल दीज वीडियोज़ केयरफुली, सीरियसली. आपको इन सभी लेक्चर्स का काफ़ी फ़ायदा होगा. सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द MCQ number 13, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. So see the solution of this question number 13, and in this question what we have given: if the angles of the triangle are in the ratio 3:4:5, angles of the triangle are in the ratio 3:4:5, then we have to find the ratio of the sides of the triangle. Okay, so see what we have given. Question number 13, its solution: angles of the triangle are in the ratio 3:4:5. So let the angles are ABC. So angle A, angle B और angle C, इन तीनों एंगल का रेशो हमें दिया है 3:4:5, and we have to find the ratio of the sides. Okay, so first we will find the angles of the triangle. ट्रायंगल के एंगल्स क्या होंगे? So as the ratio of the angles are 3, 4, 5, एंगल्स क्या होंगे? Let the angles are 3x, 4x and 5x. So here angle A plus angle B plus angle C is 180 degree. So angle A is 3x, angle B is 4x, angle C is 5x, and this sum is pi 180 degree. So it will be 12x equal to 180 degree, and this x is equal to 15 degree. x मिलेगा 15 डिग्री. अब मुझे एक्चुअल एंगल्स मिल जाएंगे. सो हियर इज़ माई एंगल A 3x था, 15 इंटू 3 कितना मिलेगा? 45 डिग्री. एंगल भी कितना था? 4x. एंगल भी कितना था? 4x. सो 4 इंटू 15 मिलेगा 60 डिग्री. एंगल C कितना था? 5x. सो 15 इंटू 5 75 डिग्री. सो these are the angles of the triangle, and we have to find the ratio of the sides of the triangle. Okay, so these ratio of sides of the triangles, it means we have to find A is to B is to C. And by sine rule, A by sine A equal to B by sine B equal to C by sine C. It means A is to B is to C is sine A is to sine B is to sine C. Right? So यहाँ पे sin A sin 45 होगा 1/√2. साइन B साइन 60 होगा √3/2. साइन C साइन ऑफ 75, दीज वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट. साइन 15 साइन 75, कॉस 15 कॉस 75, साइन 18 कॉस 18, इन सभी वैल्यूज़ को आप लर्न कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट. सो साइन ऑफ 75 होता है √3 + 1/2√2. राइट. सो इनका रेशो हमें फाइंड आउट करने का है. तो √2 to 2√2 इसका LCM है 2√2. तो हम इन तीनों नंबर्स को 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2√2 इंटू 1/√2, √2 कैंसल 2.
2√2 इंटू √3/2, 2 कैंसिल, √2 इंटू √3 आएगा √6। यहाँ पे 2√2 कैंसिल होगा, लास्ट का नंबर आएगा √3 + 1। सो द रेशो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 2:6 √3 + 1, and this is in the first option. Okay, so this is the solution of this first question, and all these questions are very important. Now see the next question, number 14 of solution of triangle for MHDCT. Students, see all the MCQ solution seriously देखिए। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपकी रिवीजन होगी। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस MHDCT में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का सिलेक्शन भी ऐसा किया है, सभी फॉर्मूलेज आपके इन MCQs में कवर होंगे। ओके, नाउ आई हैव दिस क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट आई हैव गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 14? If the angles ABC of a triangle are in AP, if the angles ABC of a triangle are in AP, triangle के सभी angles AP में हैं, ABC, then I have to find the value of A plus C by B. I have to find the value of A plus C by B. So here angles ABC are in AP. Angles ABC are in AP, right? तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट है बी एंगल इज 60 डिग्री। अगर हमें ट्रायंगल के एंगल्स एपी में दिए हैं तो हम बी एंगल डायरेक्टली 60 डिग्री ले सकते हैं। तो उसका रीज़न भी ऐसा है, ए बी सी आर इन ए पी, तो ए प्लस सी होगा टू बी बाय द कंडीशन ऑफ ए पी, राइट। और b ऐड करेंगे दोनों साइड को तो a प्लस बी प्लस सी होगा 3b, बट दिस a प्लस बी प्लस सी ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, तो a होगा 180 डिग्री, तो मेरा b एंगल बनेगा 60 डिग्री। तो हमेशा याद रखने का है, इफ़ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ABC are in AP, then we can take directly B equal to what? 60 degree. Now, what we have to find? We have to find the value of A plus C by B. तो इसको हम सॉल्व करते हैं। A plus C by B, A plus C by B, साइन रूल यूज़ करेंगे। साइन रूल, A by sin A equal to K, A by sin A equal to K, A by sin A equal to K। A क्या होगा? K sin A। सिमिलरली B क्या होगा? K sin B। सिमिलरली C क्या होगा? K sin C। तो ये K कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर का K नीचे का K कैंसिल, K sin A प्लस K sin C, K कॉमन, ये होगा K sin B, K कैंसिल। I can directly write it as sin A plus sin C by sin B। समझ में आया है? साइन रूल यूज़ किया है। अब मैं इसे यूज़ करूँगा फैक्टराइजेशन फार्मूला, sin C प्लस sin D। फैक्टराइजेशन का पहला फार्मूला sin C प्लस sin D होता है 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 अपॉन दिस। साइन को मैं हाफ एंगल में लिखूँगा 2 साइन बी बाई 2 साइन बी, 2 साइन बी बाई 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ बी बाई 2, राइट। सो दिस 2 and this 2 will get cancelled. Now again one formula is there. In triangle ABC, what is sin of A plus C by 2? In triangle ABC, sin of A plus C by 2 is cos B by 2. So this is cos B by 2.
सो साइन ऑफ ए प्लस सी बाई टू और कॉस बी बाई टू सेम है, तो इन दोनों को हमें कैंसल करना ही होगा, बोथ आर इक्वल। नाउ सी, न्यूमरेटर की टर्म मेरे पास बची है कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई टू अपॉन, अब बी एंगल कितना है 60, 60 बाई टू 30, साइन 30 कितना होगा 1/2, ये 2 गया ऊपर, तो आंसर मिला 2 cos ऑफ a माइनस सी बाई टू। सो सी इन द ऑप्शन, which option gives 2 cos of a minus c by 2, and this is in the second option B. So this is the solution of this question number 14 of solution of triangle for MHTCT. Next solve करेंगे question number 15. See the solution of 15. Students, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लंबी कंडीशन दिए है, इस कंडीशन को हम लिख लेंगे इन क्वेश्चन नंबर 15। द गिवन कंडीशन इज 2 cos a by a, 2 cos a by a plus cos b by b प्लस 2 cos c by c, 2 cos of c by c is equal to a by bc plus b by ca, a by bc plus b by ca, and we have to find the angle a. हमें फाइंड आउट करने का है एंगल a। ओके, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लगा दे डायरेक्ट, कॉस ए कॉस बी कॉस सी कोसाइन रूल, सॉल्व होगा? यस, श्योरली होना चाहिए। तीनों फॉर्मूले यूज कर देंगे, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, एंड वी विल गेट द रिजल्ट्स। हमारे ऑप्शंस भी दिए हैं एंगल्स के, हमें एंगल ए फाइंड आउट करने का है। ओके, कोसाइन रूल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा सॉल्व करेंगे, ये दोनों टर्म से मैं पहले 2 कॉमन ले लेता हूँ, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम दिस 2 टर्म्स। तो 2 कॉमन लेने के बाद मुझे मिलेगा cos a अपॉन a प्लस cos c अपॉन c प्लस दिस टर्म एज इट इज़ cos b बाई b इक्वल टू, इसे मैं एज इट इज़ लिखता हूँ a बाई बी सी प्लस b बाई सी ए, राइट। इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली कोसाइन रूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस मेथड से सॉल्व करूँगा 2 इंटू, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, c cos a, c cos a प्लस a cos c अपॉन a c plus this as it is, this as it is, this as it is, 2 into c cos a plus a cos c। कहीं देखा है, कहीं देखा है a cos c plus c cos a, कौन सा रूल है, प्रोजेक्शन रूल। इसमें क्या नहीं है, b, तो बाय प्रोजेक्शन रूल b क्या होता है, b इक्वल टू a cos c plus c cos a। This is projection rule. This is what? Projection rule. B equal to a cos c plus c cos a। तो इसे मैं b लिख देता हूँ, a cos c plus c cos a equal to b। सो ये बन गया 2b अपॉन ए सी प्लस cos b अपॉन b इक्वल टू a बाई बी सी प्लस b बाई सी ए। अब देखिए, ए मेरा cos b बाई बी एज इट इज 2b बाई ए सी, ये b बाई ए सी है, तो ये a बाई बी सी एज इट इज b बाई ए सी माइनस 2b बाई ए सी, एक b बाई ए सी, एक
बी बाई ए सी माइनस 2 बी बाई ए सी इज माइनस बी बाई ए सी। ओके, अब देखिए इसे मैं लगा देता हूँ कोसाइन रूल, इससे मैं लगा देता हूँ कोसाइन रूल। तो ये मेरा 1/b कॉस बी का फॉर्मूला बाय कोसाइन रूल। व्हाट इज कोसाइन रूल फॉर कॉस बी? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए सी। ये 1/b कॉस बी का फॉर्मूला। यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 1/c। फिर 1/c कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा a बाई बी माइनस बी बाई, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन होगा ए बी। राइट, नाउ सी ए बी सी, दिस कैंसल। ओके, अब वन मिस्टेक इज देयर, कोसाइन रूल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac फॉर्मूला। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। राइट, तो ये 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा c स्क्वायर। सो मुझे ऐसा मिलेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। What does it mean? b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। कहाँ पे राइट एंगल होगा? वर्टेक्स ए पे। कहाँ पे राइट एंगल होगा? वर्टेक्स ए पे। देखिए ए बी सी, right angle at A, this is A, this is B, this is C, B square plus C square equal to A square. This means angle A is of 90 degree. Angle A बनेगा मेरा π/2. So answer to this question is C. C answer correct है, angle A है π/2 and this is the solution of this question number 15. अगर ये मेथड आपको थोड़ी लंबी लगती है, सो डायरेक्टली यू कैन अप्लाई cos A, cos B, cos C एंड यू कैन सिंप्लीफाई, यू विल गेट दिस रिलेशन। लास्ट में आपको यही रिलेशन मिलेगा। सो दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन 15। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सी द नेक्स्ट सॉल्यूशन 16 का सॉल्यूशन देखते हैं। सो व्हाट वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 16। क्या है मेरा 16 नंबर का क्वेश्चन? इन ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, इन ट्रायंगल ABC 3 sin A। ओके, 3 sin A equal to 6 sin B equal to 6 sin B equal to 2√3 into sin C. Okay, this is given to us and again I have to find the angle A. फिर से मुझे एंगल A फाइंड आउट करने का है। ओके, किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए। sin A अपॉन 1/3 लिख सकता हूँ, 6 sin B को लिख सकता हूँ sin B अपॉन 1/6। ओके, दिस इज sin C अपॉन 1/2√3। सो दिस इज sin A बाई A इक्वल टू sin B बाई B इक्वल टू sin C बाई C। साइन रूल होगा,
तो यहाँ पे मुझे रेशो मिल गया A:B:C is 1/3:1/6:1/2 √3 sine rule. Sin A by A equal to sin B by B equal to sin C by C. So here A:B:C is 1/3:1/6 1/2 √3 and this is equal to sin A sin B sin C. ये रेशो है sin A sin B sin C का। ओके, ऐसा ही लिखता हूँ, फिर आपके समझ में आ जाएगा। sin A sin B sin C, sin A sin B sin C। अब इसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद मिलने वाली वैल्यूज साइन की हो, मिलने वाली वैल्यूज साइन की हो। सो मल्टीप्लाइंग दिस बाय, कहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 इंटू 3 1, 1/6 इंटू 3 1/2, 1/2 √3 इंटू 3 3/√3 इज √3/2। इसमें साइन दिख रहा है, इसमें साइन है साइन ऑफ 90 डिग्री 1, साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2, साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2, 30 + 90 + 60 राइट एंगल ट्रायंगल सम 180 है। तो मेरा एंगल ए पूछा है, एंगल ए कितना है 90 डिग्री। एंगल बी पूछते थे तो 30 डिग्री, एंगल सी कितना होगा 60 डिग्री, राइट। सो हियर एंगल ए इज ऑफ 90 डिग्री and the answer to this question is C correct है, and this is the solution of 16. Now we will solve the next question number 17. अब देखिए 17 of solution of triangle क्या दिया है, in triangle ABC, in triangle ABC A plus C equal to 2B is given. And again I have to find the value of A plus C upon root of A square minus AC plus C square. Okay. A plus C equal to 2B दिया है तो B 60 डिग्री होगा। इट मीन्स ABC आर इन AP B 60 डिग्री है। A plus B plus C 3B B ऐड करेंगे दोनों साइड को, तो ये मेरा 3B होगा 180 डिग्री, तो मेरा B कितना होगा 60 डिग्री, राइट। अब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करने की है A plus C अपॉन रूट ऑफ AC A square minus AC plus C square. So before finding the value of that expression I will use the cosine rule. उसका क्या फ़ायदा होगा, इस एक्सप्रेशन A plus C अपॉन रूट ऑफ A square माइनस AC plus C square की वैल्यू निकालने में cos B के फॉर्मूले का क्या फ़ायदा होगा। cos of B कोसाइन रूल, cos of B कोसाइन रूल, A square plus C square माइनस B square अपॉन 2AC अपॉन 2AC अपॉन 2AC, cos of B cos of 60 डिग्री 1/2, cos of B cos of 60 degree 1/2, this cancel, so A square plus C square minus B square equal to मिला मुझे AC, और यही मुझे उस एक्सप्रेशन में लिखने का है। A square minus AC plus C square equal to क्या मिला मुझे B square. I can write A square minus AC plus C square equal to what, B square. Now मुझे वैल्यू फाइंड आउट करने की थी इस एक्सप्रेशन की A plus C अपॉन रूट ऑफ A square माइनस AC plus C square. सो A plus C अपॉन A square माइनस AC plus C square को मैं B square लिख सकता हूँ। रूट ऑफ B square मेरा B बन जाएगा। अब साइन रूल K sin A K sin C K sin B,
सो दिस इज साइन ए साइन सी साइन बी। इसके डायरेक्ट फार्मूले हैं, इसके भी डायरेक्ट फार्मूले हैं। ए प्लस सी बाई बी क्या होता है, ए माइनस सी बाई बी क्या होता है, इनके भी सभी के फार्मूलेज हैं। लेकिन इतने फार्मूले ध्यान में रखेंगे तो कन्फ्यूजन भी है, तो डायरेक्टली सॉल्व ही करेंगे। अपना फैक्टराइजेशन 2 साइन ए प्लस सी बाई 2 कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई 2 और साइन बी को लिखता हूँ मैं 2 साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2, दिस कैंसल। अगेन साइन ऑफ ए प्लस सी बाई 2 इज कॉस बी बाई 2, दिस कैंसल। सेम है इन ट्रायंगल ABC, साइन ऑफ ए प्लस सी बाई 2 इज कॉस ऑफ बी बाई 2। नाउ वी आर नियर टू आंसर। साइन ऑफ बी बाई 2, फिर से साइन बी बाई 2, 30 साइन 31 बाई 2, 2 ऊपर जाएगा। सो इट इज 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई 2, 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई 2, ये मेरा आंसर है। किस ऑप्शन में ए दिखाई दे रहा है, पहला ही है, फर्स्ट वन, ए, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू 17। सी द नेक्स्ट 18, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। प्रॉब्लम्स इस सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन फार्मूले आने चाहिए, फार्मूले इम्पॉर्टेंट हैं। सो अब देखते हैं 18, व्हाट वी हैव गिवन इन 18। सी द 18 देखिए 18 इन ट्रायंगल ABC cos A प्लस cos C अपॉन A प्लस C प्लस cos B बाई B। ओके cos A प्लस cos C अपॉन A प्लस C प्लस cos B बाई B। सिंपल है, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करने की इन ट्रायंगल ABC। ओके तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंटू दिस, बी कॉस ए प्लस बी कॉस सी प्लस ए कॉस बी प्लस सी कॉस बी अपॉन दिस इंटू दिस, बी इंटू ए प्लस सी। ओके अब देखिए टर्म्स ऑब्जर्व कीजिए, व्हाट दिस टर्म विल गिव, कौन सा फॉर्मूला हमें नज़र आ रहा है। बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, ये कॉस अच्छा निकालता हूँ मैं, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, प्रोजेक्शन रूल, ए कॉस बी प्लस बी कॉस सी क्या होगा, सी, प्रोजेक्शन रूल। फिर देखिए बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, ए। सो बाय कॉस प्रोजेक्शन रूल ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, तो इसे मैं ए लिख सकता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व, दिस कैंसल, ए प्लस सी, आंसर क्या है 1 बाई बी। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन and 1 by B is in option B. Second one is correct. So this was 18. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। See the solution of 19 again in triangle ABC। in triangle ABC क्या दिया है, ए दिया है 6, बी दिया है 8, सी दिया है 10, साइन 2a पूछा है। साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन, A6, B8, C10। साइड्स को ऑब्जर्व कीजिए, इन साइड्स को देख के ही पता चलता है कि ट्रायंगल कौन सा है, किस टाइप का ट्रायंगल है।
6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, ये है ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, राइट एंगल ट्रायंगल एट सी। सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज द ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट है पाइथागोरस का, तो यहाँ से हमें समझ में आ जाता है। तो ये मेरा ट्रायंगल राइट एंगल, ये 10 C10 यानी एंगल C इज ऑफ 90 डिग्री। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज 6, दिस इज 8, B A C, ओके। साइन 2A पूछा है, साइन ऑफ 2A, साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 साइन थीटा यानी 2 साइन A इंटू कॉस ऑफ A, 2 साइन A इंटू कॉस ऑफ A। प्रॉब्लम इज सॉल्व फ्रॉम द ट्रायंगल, साइन इज दिस बाय दिस, कॉस इज दिस बाय दिस। साइन A, साइन A, साइन A opposite by hypotenuse 6 by 10, 6 by 10 is 3 by 5, cos A, cos A adjacent by hypotenuse 8 by 10, 4 by 5, so this is 3 by 5, this is 4 by 5, 12 into 2, 24 by 25, 24 by 25 देखिए किस ऑप्शन में आंसर है, दिस इज इन द लास्ट ऑप्शन डी, राइट। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो कोसाइन रूल यूज़ करके हम कॉस ए निकालते, फिर कॉस ए से आइडेंटिटी यूज़ करके साइन ए निकालते, फिर फॉर्मूला यूज़ करते साइन 2A इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ओके। सो ईजी प्रॉब्लम था, इसमें कोई हार्ड नहीं पूछा है। सी द नेक्स्ट 20। अब सीईटी में सभी क्वेश्चन तो हार्ड नहीं पूछेंगे, 50 क्वेश्चन आते हैं, सभी के सभी हार्ड पूछ लिए, टाइम भी तो मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इन द टोटल 50 MCQs ओनली 5 MCQs आर देयर, जिसको आपको सॉल्व करने में टाइम लग सकता है। लेकिन जिन MCQs को आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो कुछ MCQs तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे, विद इन हाफ मिनट भी सॉल्व हो सकते हैं, तो वो टाइम भी आपका बचता है। तो वो बचा हुआ टाइम आप जो MCQs हार्ड है उसको लगा सकते हो। टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, उसके लिए प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट, ओके ओके ओके। सी द नेक्स्ट देखिए अपना 20। इन ट्रायंगल ABC 2AC इंटू साइन ऑफ A माइनस B प्लस C बाई 2, 2AC इंटू साइन ऑफ 2AC इंटू साइन ऑफ A माइनस B प्लस C बाई 2, 2AC इंटू साइन ऑफ A माइनस B प्लस C बाई 2 क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। साइन ऑफ इन ट्रायंगल ABC दिया है, इन ट्रायंगल ABC दिया है यानी A प्लस B प्लस C पाई है। सो यहाँ से मैं A प्लस C को लिख सकता हूँ पाई माइनस B, तो ये मेरा A प्लस C को लिखा मैंने पाई माइनस B, A माइनस B अपॉन 2। आर यू गेटिंग और नॉट? इन ट्रायंगल ABC A प्लस B प्लस C इज पाई, A प्लस C इज पाई माइनस B, तो इस A प्लस C को मैंने पाई माइनस B लिखा है। अब A बन गया पाई माइनस B, पाई माइनस 2B, दिस इज पाई माइनस 2B, तो उसको हम 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो ये बनेगा पाई बाई 2 माइनस 2B बाई 2, 2 कैंसल B। नाउ द इट इज़ वेरी इजी, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये स्टेप आपके समझ में आई है।
पाई माइनस 2b/2, पाई/2 माइनस 2b/2, 2 कैंसिल, b मिलेगा पाई/2 माइनस b। राइट, साइन ऑफ पाई/2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये बन गया कॉस b, ये मेरा 2ac। अब मेरा कोसाइन रूल बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, दिस 2ac, दिस 2ac, दिस कैंसल एंड आंसर इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दैट इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन बी में दिख रहा है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो सेकेंड वन इज करेक्ट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 20। नाउ सी द 21। अब देखिए 21, नेक्स्ट सॉल्यूशन 21 इन ट्रायंगल ए बी सी। 21 क्या दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए दिया है 5, बी दिया है 4, साइड ए इज 5, साइड बी इज 4। ओके, एंगल ए दिया है पाई/2 प्लस बी, एंगल ए इज पाई/2 प्लस बी एंड आई हैव टू फाइंड द एंगल सी। राइट, इन सभी फॉर्मूलेज में से साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, नेपियर्स एनालॉजी, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? मैंने आपको बोला था नेपियर्स एनालॉजी हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कभी डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स दिखाई देता है क्वेश्चन में, तो नेपियर्स एनालॉजी यूज़ करके देखनी चाहिए, इजीली आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस है एंगल ए और बी का, ए माइनस बी कितना है पाई/2। राइट, सो डिफरेंस ऑफ द एंगल्स इज गिवन, ए इज गिवन, बी इज गिवन। नेपियर्स एनालॉजी का फॉर्मूला लिखिए, टेंजेंट रूल भी कहते हैं, a माइनस b/2। नेपियर्स एनालॉजी क्या कहती है, tan ऑफ a माइनस b/2 इज दिस माइनस दिस बाय दिस प्लस दिस इंटू बचा क्या है c, cot c/2। ये है मेरी नेपियर्स एनालॉजी, ये है मेरी नेपियर्स एनालॉजी। tan ऑफ a माइनस b कितना है पाई/2/2, ये हो गया पाई/4, a is 5, b is 4, a is 5, b is 4 इंटू cot c/2। सो ये मेरा tan पाई/4 1, cot को लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसफ़र करेंगे, cot बन जाएगा tan ऑफ c/2, दिस इज़ 1, cot को ट्रांसफ़र कीजिए, tan बन जाएगा, दिस इज़ 1/9। यस, अब c/2 बन गया है मेरा tan inverse of 1/9 and this angle C is 2 tan inverse of 1/9 and this angle 2 tan inverse of 1/9 is in the second option B and this is the solution to question number 21। अब देखिए 22, see the next 22, see the next 22। क्वेश्चन देखिए ऑन द बोर्ड 22। द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 3, 5, 7। लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 3, 5, 7 और पूछा क्या है, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट एंगल पूछा है, लार्जेस्ट एंगल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, largest angle is opposite to largest side, smallest angle of the triangle is opposite to smallest side। right, largest angle पूछा है, साइड्स दिए हैं ए बी सी, साइड्स क्या है 3, 5, 7, 3, 5, 7। let ABC are the sides 3, 5, 7। largest angle is opposite to largest side, A B C, A equal to B equal to C equal to 3, 5, 7।
सी इज़ द ए बी लार्जेस्ट साइड है, सी लार्जेस्ट है तो उसके सामने की एंगल सी ये सबसे बड़ा होगा क्योंकि ए बी इज़ द ग्रेटेस्ट साइड, एंगल अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड इज़ ग्रेटेस्ट। सो एंगल सी बड़ा है तो हमें फाइंड आउट करने का है सी। कौन सा एंगल फाइंड आउट करने का है? सी। ओके, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? स्मॉलेस्ट एंगल ए है बिकॉज ए इज़ द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट एंगल इज ए, ग्रेटेस्ट एंगल इज सी। कॉस सी का फॉर्मूला बोलिए, कोसाइन रूल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ए स्क्वायर मेरा 9, ए स्क्वायर कितना है 9, बी स्क्वायर कितना है 25 माइनस 49 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5। इजी क्वेश्चन है। सो दिस इज -40 माइनस 15/30 माइनस 1/2। तो मेरा कॉस सी है -1/2, राइट। कॉस की वैल्यू निगेटिव है यानी सी लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। कॉस निगेटिव है, कॉस पॉजिटिव होता तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनता। सो क्लियरली सी कितना होगा भाई 120 डिग्री, 180 माइनस 60 120 यानी कितना 2π/3। 2π/3 is the greatest angle of this triangle. This is in the third option C and this is the solution to 22। सॉल्यूशन को एक बार देख लीजिए। अब सॉल्व करेंगे 23। देखिए, पढ़िए क्या दिया है क्वेश्चन में। 23 द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन विच A1 B2 C60 A1 B2 C60 A1 B2 angle C is 60 degree, capital C, this is angle, these are the sides। तो हमें पूछा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इन वैल्यूज़ को देख के ही पता चलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का कौन सा फॉर्मूला यूज़ किए तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसा फॉर्मूला लिखिए जिसमें एंगल C आना चाहिए, हाफ ऑफ AB साइन C। 3 फॉर्मूले थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हाफ ऑफ AC साइन B, हाफ ऑफ AB साइन C, हाफ ऑफ AC साइन B, ऐसे 3 फार्मूले हैं। डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की है। A मेरा 1, B मेरा 2, C मेरा 60 साइन 60 √3/2, 2 कैंसल, एरिया मिला √3/2। कितना इजी है, कितना सिंपल है। √3/2 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में। वेरी वेरी सिंपल, मोस्ट सिंपल क्वेश्चन। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन भी लेते हैं। ओके, अब देखिए 24 इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 24, क्योंकि 12 ही प्रॉब्लम इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले हमने 12, अब इस लेक्चर के 12, अगले लेक्चर में 12, 36 प्रॉब्लम्स में आपको इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करके देने लगा। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल फॉर MST/CT। ओके, सी 24 देखिए सॉल्यूशन 24 का क्या दिया है। 4 sin A इक्वल टू 4 sin B, 4 sin A इक्वल टू 4 sin B इक्वल टू 3 sin C, right? So this is the given condition in triangle ABC। I have to find cos C। cos C की वैल्यू फाइंड आउट करने की, यानी लास्ट में मुझे कोसाइन रूल यूज़ करने का है। तो कोसाइन रूल cos C का क्या होगा? A² + B² - C² अपॉन 2ABC, यानी मुझे स्मॉल ABC फाइंड आउट करने के हैं। तो यहाँ से मुझे स्मॉल ABC कैसे मिलेंगे? फिर से मैं इसे लिख सकता हूँ A/1/4
साइन बी बाय 1/4 साइन सी बाय 1/3 साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी इज टू ए इज टू बी इज टू सी. साइन रूल. साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी. बट दिस ए इज टू बी इज टू सी यानी साइन ए इज टू साइन बी कितना होगा 1/4 इज टू 1/4 इज टू 1/3. राइट. 12 से मल्टीप्लाई कीजिए. सो इट इज 3 इज टू 3 इज टू 4. सो ए इज 3 बी इज 3 सी इज 4. A is 3, B is 3, C is 4. या फिर A is 3K, B is 3K, C is 4K. K भी K के फॉर्म में भी ले सकते हैं, नहीं K लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आता है. ओके. 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 3 4 A is 3, B is 3, C is 4. अब मुझे फाइंड आउट करने का था cos C. क्या पूछा है क्वेश्चन में? cos C. So what is my cosine rule? A square plus B square minus C square upon 2AB. तो ये हो गया 9 plus 9 minus 16 upon 2 into 3 into 3. A into B. 3 into 3. C 4 16 18. So it is 2 by 2 into 9 2 कैंसल 1/9. 1/9 इसका आंसर है. सो वैल्यू ऑफ कॉस इज 1/9. किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी सेकंड. सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट टू दिस क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, these were the important 12 problems of solution of triangle for MHTCT. लास्ट लेक्चर में हमने 12 प्रॉब्लम सॉल्व किए. 24 प्रॉब्लम्स हो गए हैं. नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखिए. सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आपका क्लियर हो जाएगा. धीरे धीरे हम प्रॉब्लम्स की लेवल भी इंक्रीज कर रहे हैं. नेक्स्ट 12 प्रॉब्लम्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टॉप हियर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर MCQ नंबर 25 से. ओके स्टूडेंट्स, बाय.